کربلا کا نام سنتے ہی سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 72 وفاداروں کے ساتھ شہید کیا گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ 72 لوگ تھے کون؟ کیا ان کا تعلق حضرت امام حسین سے تھا، یا ان کے والد حضرت علی سے، یا پھر ان کے بھی والد ابو طالب سے، یا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رشتہ تھا؟ تو آج ہم آپ کو کربلا کے شہیدوں کی ایسی جھلک دکھانے جا رہے ہیں جو عام طور پر کتابوں میں بکھری ہوئی ملتی ہے، لیکن ایک مکمل تصویر کے طور پر بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات صاف کر دیں کہ ہاں، اکثر یہی سننے کو ملتا ہے کہ کربلا میں 72 لوگ شہید ہوئے، اور زیادہ تر کتابوں میں بھی یہی تعداد لکھی گئی ہے، اور یہ بات کافی حد تک صحیح بھی ہے۔ مگر اگر آپ اس بات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان تمام 72 ناموں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، یا ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ شاید یہ تعداد 72 سے کچھ زیادہ تھی۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ تمام لوگ 10 محرم کے دن ہی شہید نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ اس تاریخ سے پہلے شہید ہوئے تھے اور کچھ اس کے بعد۔ تو چلیے اب بات شروع کرتے ہیں اہل بیت سے، یعنی ان خاص ہستیوں سے جن کا تعلق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی سے تھا۔ اور اسے صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت علی کے والد ابو طالب ابن عبد المطلب کی طرف لوٹنا ہوگا، جو صرف نبی کے سگے چچا ہی نہیں بلکہ اسلام کے شروعاتی دور میں سب سے بڑے محافظ اور مددگار بھی تھے۔ ویسے تو تاریخی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب بن عبد المطلب کی کل 6 اولادیں تھیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہی بیٹوں میں سے ایک تھے۔ کربلا کے میدان میں جو افراد شہید ہوئے وہ صرف ابو طالب کے 3 بیٹوں کی نسل سے تھے۔ ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے حضرت علی شیر خدا کا، دوسرے بیٹے ہیں حضرت جعفر طیار بن ابو طالب، اور تیسرے ہیں حضرت عقیل بن ابو طالب۔ اب دوستوں، ان تینوں میں سے ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اکثر ہم لوگ حضرت علی کی بیوی کے طور پر صرف حضرت بی بی فاطمہ کا نام ہی سنتے ہیں، اور ان کے 2 بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت علی نے تب تک کوئی نکاح نہیں کیا جب تک کہ نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو گئیں۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی نے الگ الگ وقتوں پر کئی نکاح کیے، اور ان نکاحوں سے کل 9 بیویوں سے قریب 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اب سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت علی کے ان بیٹوں میں سے 8 بیٹوں کو، جبکہ زیادہ تر پوتوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں حضرت علی کے بڑے بیٹے اور امام حسین کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، جنہوں نے حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک خلافت بھی سنبھالی تھی۔ حالانکہ کربلا کی جنگ کے وقت وہ موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ قریب 10 سال پہلے ہی زہر دے کر شہید کر دیے گئے تھے۔ مگر ان کے قریب 20 بیٹوں میں سے 7 بیٹے ایسے تھے جو کربلا کی اس جنگ میں شامل ہوئے، اور ان میں سے 4 بیٹوں کے شہید ہونے کا تذکرہ تاریخ میں درج ہے۔ ان 4 بیٹوں سے سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت قاسم کا، جن کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 13 سے 14 سال تھی۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ انہیں گھوڑوں سے روند کر شہید کیا گیا۔ دوسرے بیٹے تھے حضرت ابو بکر، جنہیں تیر مار کر شہید کیا گیا۔ تیسرے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، جن کی عمر صرف 11 سال تھی۔ وہ اس وقت شہید ہوئے جب انہوں نے حضرت امام حسین پر ہونے والے ایک حملے کو اپنے سینے پر روک لیا اور ان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ حملے کو روکنے کی وجہ سے ان کا ہاتھ اس طرح سے زخمی ہوا کہ وہ لٹکنے لگا۔ اس کے بعد ہرملا نے انہیں تیر مار کر حضرت امام حسین کے بازو میں ہی شہید کر دیا، جبکہ شہید ہونے والے چوتھے بیٹے کا نام بشر ابن حسن بتایا گیا ہے۔ اس جنگ میں حضرت حسن کے مشہور بیٹے حسن المثنی بھی شامل تھے، جنہوں نے بڑی ہی بہادری کے ساتھ لڑائی لڑی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اسی لیے وہ حد سے زیادہ زخمی حالت میں قیدی بنا لیے گئے۔ بعد میں حضرت امام حسن کی زیادہ تر نسل انہی سے آگے بڑھی، اور انہی کو ہی حسنی سید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی نسل سے سب سے مشہور صوفی بزرگ
यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे लोग पैदा हुए। हजरत हसन के बाद अब अगर हजरत अली के दूसरे बेटे यानी हजरत इमाम हुसैन की बात की जाए तो वो खुद तो करबला के मैदान में शहीद हुए ही, साथ ही उनके 3 बेटों में से 2 बेटे भी शहीद हुए थे। पहले बेटे का नाम हजरत इमाम अली अकबर था, जिनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 18 से 25 साल के बीच बताई जाती है, जिनके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि ये हद से ज्यादा बहादुरी के साथ लड़े, मगर फिर मुर्रा इब्न साद नाम के एक जंगजू ने धोखे से इनके पीछे से हमला करके इन्हें शहीद कर दिया था। जबकि दूसरे शहीद होने वाले बेटे का नाम था अली असगर। अली असगर जैसी दर्दनाक शहादत शायद इतिहास ने कभी नहीं देखी होगी। उसकी वजह यह है कि ये अपनी शहादत के वक्त एक नौमौलूद बच्चे ही थे, जिनको उस वक्त तीर मारकर शहीद किया गया जब ये अपने वालिद यानी हजरत इमाम हुसैन की गोद में प्यास से बिलबिला रहे थे। इमाम हुसैन के तीसरे बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में मौजूद थे, मगर बीमार होने की वजह से इस जंग में शामिल नहीं हो सके थे। इन्हें भी बाद में कैदी बना लिया गया था और शायद खुदा को मंजूर भी यही था, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन की आगे की नस्ल फिर इन्हीं से चली। हजरत अली के तीसरे बेटे अब्बास इब्ने अली, जिनको आमतौर पर हम अब्बास अलमदार के नाम से याद करते हैं, वो भी इस जंग में शामिल थे। उनके बारे में तो इतिहासकार लिखते हैं कि वो दुश्मन फौज को चकमा देकर दरियाए फुरात तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए थे, मगर वापसी में पानी लाते वक्त उन्हें शहीद कर दिया गया। हजरत अब्बास अलमदार के बेटे कासिम इब्ने अब्बास भी इस जंग में शहीद हुए थे, जबकि इनकी नस्ल इनके एक दूसरे बेटे उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास से चली, जिनको आजकल अलवी कबीले का अहम सरदार माना जाता है। अब क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के इस मैदान में हजरत अली के 8 बेटों और ज्यादातर पोतों को शहीद किया गया था, तो 2 बेटों यानी हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास की बात तो हम कर चुके हैं, जबकि बाकी बचे हुए 6 बेटों का नाम कुछ इस तरह से है। पहले बेटे हजरत जाफर इब्ने अली, दूसरे अब्दुल्लाह इब्ने अली, तीसरे हजरत उस्मान इब्ने अली, चौथे हजरत अबू बकर इब्ने अली, 5वें मोहम्मद अल असगर इब्ने अली और छठे और आखिरी हजरत उमर इब्ने अली। तो इस तरह से ये टोटल 8 बेटे बनते हैं। दोस्तों, अब हम लोग एक बार फिर से जरा ऊपर की तरफ लौटते हैं और अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बेटे यानी हजरत अली के एक दूसरे भाई हजरत जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब की नस्ल को देखते हैं। ये जो हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, ये हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से उम्र में तकरीबन 10 साल बड़े थे और करबला से बहुत पहले ही बाइजेंटाइन एम्पायर यानी रूमी हुकूमत के खिलाफ जंग में शहीद हो चुके थे। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक जब जंग में आपके दोनों बाजू काट लिए गए तब भी आप लड़ते रहे। आपकी इसी बहादुरी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जाफर तैयार का लक़ब दिया, जिसका मतलब होता है जन्नत की तरफ तेजी से उड़कर जाने वाला। करबला के मैदान में हजरत जाफर के 2 बेटे भी शहीद हुए थे। इसके अलावा उनके 2 पोतों की शहादत की भी रिवायत मिलती है। शहीद होने वाले बेटों के नाम औन और मोहम्मद अल असगर बताए गए हैं, जबकि जो 2 पोते शहीद हुए उनके नाम भी औन और मोहम्मद थे। लेकिन याद रहे, ये दोनों पोते हजरत जाफर के उन्हीं बेटों की औलाद नहीं थे जो करबला में शहीद हुए थे, बल्कि ये एक तीसरे बेटे अब्दुल्लाह की औलाद थे। अब्दुल्लाह खुद बीमारी की वजह से करबला के मैदान में शरीक नहीं हो सके, लेकिन उनके ये दोनों बेटे अपनी वालिदा हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ करबला में मौजूद थे और 10 मुहर्रम के दिन शहादत का रुतबा पाया। अब आइए चलते हैं अबू तालिब के तीसरे और बड़े बेटे की तरफ, हजरत अकील इब्ने अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनके बारे में कहा जाता है कि ये करबला के वाक़ये से बहुत पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, लेकिन उनकी अधिकतर औलाद और पोते करबला के मैदान में शहीद हुए। उनके सबसे बड़े बेटे थे हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें इमाम हुसैन ने अपना सफीर यानी दूत बनाकर कूफा भेजा था। जब उन्होंने कूफा पहुंचकर वहां की हालत को इमाम हुसैन के हक में पाया तो एक खत लिखकर उन्हें बुलाया, मगर बाद में जब इब्ने ज़ियाद ने कूफा की बागडोर संभाली तो पहले हजरत मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया और फिर किले की छत से सरेआम उनका सर कलम कर दिया गया। यहाँ तक कि जिस शख्स ने उन्हें अपने घर में पनाह दी थी उसका भी सर कलम करवा दिया गया। इस तरह यजीद को भेजे गए सबसे पहले सरों में एक हजरत मुस्लिम का था। हजरत अकील इब्ने अबू तालिब के
मुस्लिम बिन अकील के अलावा जो दूसरे बेटे शहीद हुए थे उनका नाम अब्दुर्रहमान इब्ने अकील बताया जाता है। ये न सिर्फ हजरत अली के चचेरे भाई थे बल्कि रिश्ते में दामाद भी थे। हजरत अली की तरह ही ये भी बहादुर और मशहूर थे। करबला के मैदान में इन्होंने अकेले ही 17 से 18 दुश्मन फौजियों को हलाक कर दिया और फिर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इनके अलावा उनके एक और बेटे अब्दुल्लाह इब्ने अकील और एक छोटे भाई मोहम्मद इब्ने अबी साद इब्ने अकील, ये दोनों भी जवान उम्र में करबला के मैदान में शहीद हो गए। ये तो अब तक हजरत अकील इब्ने अबू तालिब के सिर्फ बेटों का जिक्र था, लेकिन उनके कई पोते भी करबला में शहीद हुए और जितने भी शहीद हुए उनमें से लगभग सारे या फिर ज्यादातर हजरत मुस्लिम बिन अकील की ही औलाद थी। जी हाँ, उन्हीं मुस्लिम बिन अकील जिनके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि उन्हें हजरत इमाम हुसैन ने कूफा का सफीर बनाकर रवाना किया था। इनमें से मुस्लिम बिन अकील के जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम भी मुस्लिम बिन मुस्लिम था। वो तो कूफा में अपने वालिद के साथ ही मौजूद थे, इसलिए जब वालिद को गिरफ्तार करके किले की छत से सर कलम कर दिया गया तो उसी वक्त इन्हें भी शहीद कर दिया गया। इसके बाद हजरत मुस्लिम के दो और बेटे अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम और औन इब्ने मुस्लिम, ये दोनों करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और जांबाजी से शहीद हो गए। खास तौर पर अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम के बारे में लिखा गया है कि उनकी शहादत माथे पर तीर लगने की वजह से हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो अहले बैत में से आशूरा के दिन सबसे पहले शहीद होने वाले इंसान थे। इन तीन के अलावा हजरत मुस्लिम बिन अकील के दो और बेटों का जिक्र भी ऐतिहासिक किताबों में मिलता है। एक का नाम मोहम्मद इब्ने मुस्लिम और दूसरे का नाम इब्राहिम इब्ने मुस्लिम बताया गया है। इन दोनों की शहादत करबला के वाक़ये के लगभग 1 साल बाद हुई थी। ये दोनों उस वक्त कमसिन बच्चे थे और कैद में रखे गए थे। वक्त गुजरता रहा, लेकिन एक दिन ये दोनों बच्चे कैद से फरार हो गए। मगर अफसोस कि रास्ते में ये कूफा के एक शख्स हारिस बिन बद्र के हाथ लग गए। हारिस ने गवर्नर की तरफ से रखे गए इनाम के लालच में इन दोनों को शहीद कर दिया और फिर इनके सर इब्ने जियाद के सामने पेश करके इनाम हासिल किया। अब इन बच्चों की शहादत के बाद जिक्र आता है उन लोगों का जो अहले बैत से नहीं थे, लेकिन फिर भी हक और इमाम हुसैन के साथ खड़े रहे। 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में शहीद होने वालों में 2 सहाबा इकराम का नाम भी मिलता है। इनमें से एक थे हजरत अनस इब्ने हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि न सिर्फ जंगे बदर बल्कि जंगे हुनैन जैसी बड़ी गज़वात में भी शरीक हो चुके थे। जबकि दूसरे सहाबी का नाम हजरत अबू हजल मुस्लिम इब्ने औसजा असदी बताया जाता है। इसके अलावा भी अहले बैत से बाहर के कई ऐसे लोग थे जो 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में शहीद हुए और इनकी तादाद भी कम नहीं थी। इनमें से कई तो ऐसे भी थे जो सिर्फ इमाम हुसैन के ही नहीं बल्कि उससे पहले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी रह चुके थे और उन्होंने हजरत अली की सरपरस्ती में कई जंगों में हिस्सा लिया था। अगर हम इन बहादुर शोहदा में से कुछ और नामों का जिक्र करें तो उनमें शामिल है हजरत जुबैर इब्ने अकलैन अल बजली, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर अल असदी, हजरत बुरैर इब्ने खुजैर अल हमदानी, उमैया इब्ने साद अल ताई, जुंदब इब्ने हिज्र अल खौलानी, हुज्जाज इब्ने मसरूक अल जूफी, नाफे बिल हिलाल अल जमाली, अबू वहाब अब्दुल्ला इब्ने उमैर और सबसे अहम नाम अल हूर इब्ने यजीद अल तमीमी। याद रहे कि ये वही हूर इब्ने यजीद हैं जो पहले यजीद की फौज का हिस्सा थे, लेकिन आखिरी वक्त में तौबा करके इमाम हुसैन के खेमे में शामिल हो गए थे अपने 2 बेटों और कुछ साथियों के साथ। इनकी ये तौबा और कुर्बानी आज भी करबला की तारीख में सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। ऊपर जिनके नाम लिए गए हैं ये तो सिर्फ चंद उदाहरण हैं, वरना उन गुमनाम और मशहूर शहीदों की फहरिस्त यानी लिस्ट अभी और भी लंबी है। कुछ नाम ऐसे भी हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी शोहदाए करबला की उसी पाक फहरिस्त का हिस्सा है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर